I wish you all very good afternoon, my dear students of class 12th. Today I am going to explain your poem Keeping Quiet. This poem is composed by Pablo Neruda, the great poet. I would like to tell you all that this poem is related to us directly. This poem tells us that the life we are living is not a real life. The way we are living our lives is not, natural. We are not able to understand what is the real meaning of living a good life. We are working like machines. We are busy in our daily work and work like machines and keep on working like machine. इस पोएम में हमें ये बताया गया है कि पूरी ज़िंदगी जब हम बर्थ हमारी होती है, जब हम जन्म लेते हैं, when we are born, it means onward that day we work like machine. बिल्कुल काम में बिजी रहते. We don't have time for ourselves. We don't have time to understand ourselves, and we don't have time to understand what is the real meaning of life. In this poem, Keeping Quiet, Pablo Neruda talks about the introspection. You know what the meaning of introspection? Introspection means Atma Nirikshan. We do not think that why we are doing this all, why we are cheating others, why we are betraying others, why we are giving grief to others, why we are making feel sad others. Is it the good way of living a good life? क्या ऐसा है? Today we see that the people have been enemies of their own. The birth of relations, the birth of humanity has been vanished. जो मानवता की कीमत है वो सब खत्म हो चुकी है. This poem tells we should introspect ourselves. All the things we are doing are good. Are we doing good things? Are we doing all the things according to the order of our inner soul? Are we performing all the actions and tasks according to our conscience? क्या हम अपनी आत्मा से पूछ के सब काम कर रहे हैं? अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं क्या? क्या हम समझ रहे हैं कि जीवन का मतलब क्या है? क्या आप समझ रहे हैं कि ज़िंदगी इसी को कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. In this poem, poet Pablo Neruda suggests us to introspect. We should not perform any task for a few moments. He tells 12. 12 seconds. Or you would say that now we will count to 12. It means the life cycle. Have you ever watched clock?
हाउ मेनी आवर्स आर देयर, कितने घंटे होते घड़ी में? 12, आपने देखे। और पूरी ज़िंदगी हमारी उसी 12 घंटे में निकल जाती है, पूरी लाइफ। तो इसीलिए वो कहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा और आप लोग शांत रहें। When we will keep, quiet, then we will able to do meditation. When we will quiet, then we will able to understand ourselves and our tasks. Are they worthy or not? When we will be quiet, then we could make introspect ourselves. He believes that this sudden moment of silence will be an exotic moment. According to poet, he says we should not do anything. हमें कुछ नहीं करना चाहिए 12 गिनने तक, बिल्कुल शांत रहनी चाहिए. Some instances are also given in this poem. According to poet, that the fisherman in the sea will not killing the whales. आज अगर फिशरमैन जा रहा मछली मारने तो वो मछलियों को नहीं मारेगा. द मैन गैदरिंग साल्ट, कुछ लोग जो नमक इकट्ठा करते हैं आज वो भी ऐसा नहीं करेंगे. अपने हाथों को देखेंगे, वो जो हाथ नमक इकट्ठा करते करते उनके जो है इंजर्ड हो गए, उन हाथों को देखेंगे शांति से. कोई आज शोर नहीं होगा उस टाइम तक जब तक मैं 12 तक गिनूंगा. कोई इंजन नहीं चलेगा. एंड इवन वी विल नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में हम बात नहीं करेंगे उतने टाइम तक. और जब हम बात नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत होंगे, इसका मतलब हम आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे. अदरवाइज ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम बिल्कुल शांत नहीं होंगे तो कभी हमें टाइम नहीं मिलेगा अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए. ओके, इसलिए पोइट इसमें हमको क्वाइट रहने के लिए बिल्कुल बोलता है. कोई कुछ नहीं करेगा. वी विल नॉट मूव इवन अवर आर्म्स. इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे हाथ नहीं करेंगे, मतलब कोई काम नहीं करेंगे. हम कोई भी काम आज नहीं करेंगे. आज बिल्कुल हम सभी लोग साफ कपड़े पहनकर भाइयों की तरह छाया में बैठकर सोचेंगे. आपने देखा होगा कि हम जानते भी नहीं उन लोगों का अहित कर देते हैं. थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से लालच के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, दूसरों का दिल दुखा देते हैं. सरहद पे खड़ा हुआ एक जवान दूसरी सरहद पे खड़े हुए, देश की सरहद पे खड़े हुए जवान को जानता तक नहीं है, उसका चेहरा भी नहीं देखा, और वो उस पर गोली चला देता है, वो मर जाता है. तो वाई वी आर लिविंग द लाइफ ऑफ डिस्ट्रैक्शन. बर्बादी की ज़िंदगी हम क्यों जी रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे को मार रहे हैं? क्यों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं? क्यों बैटरी कर रहे हैं? क्यों एक दूसरे को हम हानि पहुंचा रहे हैं? इसलिए कि हम एक मशीन की लाइफ जी रहे हैं. यूजुअल लाइफ दैट हैज़ बीन रनिंग फॉर जनरेशंस. जिंदगी से लाइफ चल रही है, सदियों से वही लाइफ हम जीते आ रहे हैं. ऐसा नहीं है. हमें रुकना चाहिए, थोड़ा टाइम अपने आप को समझने के लिए भी निकालना चाहिए. कहते हैं ना कि रात में जब हम सोएं तो हम ये सोचें कि दिन भर में हमने क्या सही किया, क्या गलत किया. तो दैट टाइम बिफोर स्लीपिंग इज़ द टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. दैट टाइम बिफोर स्लीपिंग इज़ द टाइम ऑफ मेडिटेशन. whether the tasks we have performed were good or bad. Did they provide grief to others or pleasure to others? ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए. वो तभी सोच पाएंगे जब हम बिल्कुल शांत रहेंगे. कीपिंग क्वाइट मीन्स बिल्कुल जब शांत रहेंगे तभी ये चीज़ें हम सोच पाएंगे. और देखिए, पेबलो नेरूदा clarifies that he does not want to some people, इसमें दिया हुआ है, those prepare green war, कुछ हरित युद्ध करते हैं, अपने डिस्ट्रैक्शन कर देते, पेड़ पौधे जंगलों को काट देते, बर्बाद कर देते, ये भी एक युद्ध है. कुछ लोग गैस से युद्ध करते हैं. हाइड्रोजन बम बना लिए लोगों ने, कई देशों ने ये बना लिए, ठीक है, और नाइट्रोजन बम बना लिए हैं, अणु बम. कुछ वॉर विद फायर, आग से युद्ध करते हैं, राइफल चलाते हैं, बम फोड़ देते हैं. ये सभी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं.
ये सभी इसलिए हो रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट इंट्रोस्पेक्टिंग अवर सेल्फ एक्चुअली। हम अपने आप का आत्मनिरीक्षण नहीं कर रहे हैं कि ये चीज़ें सही हैं या गलत है। वी आर प्लेइंग विद नेचर, वी आर डेस्ट्रॉइंग नेचर। बिना सोचे हुए आपने देखा नेचर को बर्बाद करते जा रहे हैं, स्पॉइल करते जा रहे हैं, और एक दिन ये होगा कि नेचर हम सबको बर्बाद कर देगी, हम सबको, पूरे विश्व को ख़त्म कर देगी। और आजकल आप उसका उदाहरण भी देख रहे हो, कोरोना जो कोविड-19 का जो खतरा चल रहा है, दिस इज़ द जो हमने दैट वी हैव प्लेड ट्रिक्स विद नेचर, वी हैव स्पॉइल्ड नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्पॉइलिंग ऑफ नेचर वी आर फेसिंग टुडे। वही उनके परिणाम आज हम फेस कर रहे हैं। तो poet is giving attention on these all the things that we should not be the enemy of nature, humanity। बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें अपने मन में सोचना चाहिए। कंसाइंस जो अंतरात्मा की आवाज़ है, इनर सोल वॉइस जो है, उसको हमें सुननी चाहिए, और जो भी हमारी अंतरात्मा कहे वही करनी चाहिए। हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। बट when we will keep quiet, just keep quiet, then we will able to listen the voice of our soul। तभी हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाएंगे। तो यही इसमें पोइम में पोइट आपको बता रहा है कि ही इज़ कंसर्न दैट वी ऑल आर रनिंग ब्लाइंडली इन ए रैट रेस। चूहों की रेस में पड़े हुए हैं, जो एक तरफ दौड़ रहा हम भी उधर दौड़ते जा रहे हैं। ठीक है, उस दौड़ में हम जीवन के मतलब को नहीं समझ रहे हैं, हम लाइफ की मीनिंग को नहीं समझ रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रू लाइफ वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एट ऑल। उस जीवन को, उस रेस को हमें रुकना होगा और अपने आप को समझना होगा, इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आत्मनिरीक्षण करना होगा। तभी ये बर्बादियाँ रुकेंगी, तभी हम समझेंगे वास्तव में जीवन का मतलब क्या होता है। In this process, we have completely missed our true goal to keep a balance between man and nature। मैन और नेचर में बैलेंस ही नहीं हम जान पाए, बर्बादी करते चले, डिस्ट्रैक्शन करते चले गए, और आज हम उसको फेस कर रहे हैं और आगे भी फेस करेंगे। दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन एंड कैन ब्रिंग कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स। बहुत डेंजरस सिचुएशन है। हम बर्बादी करते जा रहे हैं, मशीनें चलाते जा रहे हैं, मशीन की तरह हम खुद चलते जा रहे हैं। कभी टाइम नहीं अपने आप को दे रहे, कभी अच्छा भला नहीं सोच रहे हैं, कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत बुरे होंगे। सो आवर सर्वाइवल इन दिस वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रेक्टिफाई दिस। अगर सर्वाइव जीवन को अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि जो आजकल हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम किसी के साथ भी कर रहे हैं, नेचर के साथ, देश के साथ, लोगों के साथ, वो सही है गलत। वो तभी सोच पाएंगे जब हम क्वाइट रहेंगे, शांत रहेंगे। इसीलिए द पोइट अपील्स इन दिस पोएम टू बी कीप क्वाइट अप टू 12। मतलब एक पीरियड जो उसने दिया है, तो आप शांत रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे, भाइयों की तरह रह पाएंगे। वो ये नहीं कहता है कि बिल्कुल शांत रहें, तो इसका मतलब ही इज़ नॉट एडवोकेटिंग द टोटल इनएक्टिविटी। वो ये नहीं कह रहा शांत हो जाओ, शांत का मतलब मर जाओ, कुछ करो ही मत, ना हाथ चलाइए ना कुछ करिए, कोई टास्क मत कीजिए। नो, we should not be died, we should be quiet, silent, केवल शांत रहें। as the earth tells us, जैसे पृथ्वी हमको बताती है, शांत लगती है लेकिन it's not dead, it is still, it is quiet, लेकिन डेड नहीं है ये। लेटर इट प्रूव्स अलाइव। बाद में आप देखो, इसी में पेड़ पौधे उगते, इसी में घास और फसलें होती हैं, और इसी में आपके ज्वालामुखी भी आते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो हमें पृथ्वी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए, मरा नहीं होना चाहिए, लेकिन गलत एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। अपने आप को सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपने बारे में, तभी देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। तो this can be done only when introspect and develop a feeling of understanding with each other। किसी के साथ एनिमिटी नहीं रखेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, जो सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे। ये सब हम कब सोच पाएंगे? सब काम धाम छोड़कर, बिल्कुल शांत होकर जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और जब हम मेडिटेशन करेंगे, तभी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि वास्तव में जीवन का मतलब क्या है।
what the real meaning of life. Okay, so this is the central idea of the poem, keeping quiet. Why should we keep quiet? So that we can understand ourselves, so that we can introspect ourselves, so that we can meditate. इसके लिए शांति बहुत ज़रूरी है. तो इस आपाधापी के जीवन से निकल कर अपने लिए भी कुछ टाइम हमें निकालना चाहिए कि शांत रहकर हम वास्तव में जीवन का मतलब समझें. अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो शांत होकर अपनी अंतरात्मा से पूछें जो हमने किया है वो सही है गलत है. अगर किसी को बर्बादी किसी की है हमने, चाहे नेचर की हो, चाहे व्यक्ति की हो, चाहे राष्ट्र की हो, मैं सोचूं ये गलत किया कि नहीं. अगर किसी को मैंने चीट किया है तो मैं सोचूं अपने आप से क्या मुझे मिला, क्या वो खुश होगा इस बात से. और जब हम ये सोच लेंगे तो इसका मतलब वी विल बी काइंड हार्टेड ह्यूमन बींग्स. और तब उसको हम समझ पाएंगे कि जीवन का असली मतलब क्या है. ओके, so this is the central idea of the poem. This is the narration of the poem. I told, and now you are supposed to read the line by line, extract by extract, and with this summary you will be able to understand the entire poem. Or after completing these extracts, you are supposed to do question answers. I will send them you all on your personal, on your group. Question answer and extract, you are supposed to note them down in your notebook, and after taking a pic you are supposed to send it back to my personal WhatsApp number so that I could check it. Okay, thank you, have a nice day, God bless you.